The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. सर स्क्रीन आ रहा है ना? Good evening, all of you. Sorry for the delay. My name is Anuj Gupta. Welcome you all in SDFC Sky Commodities. Today, we are going to do a webinar on how to trade in commodities using chart. So everybody knows and everybody thinking that only you can trade in equity using the chart, but commodity you can use technical charts for the trading in commodities. So this is a very wonderful topic because now people are very aware and keen to learn about the technical chart. So here we will guide you how to use a technical chart in the Sky. Sky is the platform where you can do trading in commodities as well as in options. So this is the important part, how to use the technical chart in the commodity. So earlier days, if you see, people are paying money to use the technical chart, but now the all technical charts are free available on the Sky. So first of all, I will give you some important points while trading in the technical chart. Then I will take go through with the Sky platform how to use technical charts in the Sky. So first of all, I will start my presentation with the basics of technical and what are the important tools and what are the things you should know about before using the technical charts. So because technical charts is basically a art to see the market, or you can say it's based on, you can say, scientific parameters, is based on some numericals, some numbers. It's also based on some permutations also. Basically, if you looking toward the chart, it shows just like a graphical representation of the price. So on the trading screen, we generally see a red and blue color. Whenever price is rise, we saw it's indicated by the blue color, and falling market indicated by the red color. So these color we actually used in the graphical representation of the price of action. So technical chart is basically is nothing, is only the action of the price for a particular asset class. So जब भी हम किसी कमोडिटी के बारे में बात करते हैं कि कमोडिटी में टेक्निकल चार्ट्स की बात करते हैं, तो बेसिकली टेक्निकल चार्ट क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि किस तरीके से प्राइस का मूवमेंट हो रहा है. तो हम उस प्राइस के मूवमेंट को देख के वी अज्यूम कि what would be the price in a next movement, right? So basically technical charts showing the price momentum, or it's provide you the future price prediction basically. So it's a very important for the traders. And right now we have seen so many software, so many algo trade, so many HF3 players, they are using the technical charts only. In commodities generally, we saw many types of trading. First of all is the swing trading. आपने सुना होगा swing trading. Then the scalping is also the thing, and intraday trading and the positional trade. So these are the four type of trade which are generally doing the pupil and generally doing the by the traders. And every trader has a different kind of psychology. So some traders are using scalping, some traders are using trading, some traders are using intraday trade, and some traders are using positional trade. So all you can do by using the technical charts. Now if we do classifications of that the trading style. So first the scalping is a very fast trading. You can say just kind of exit and entry within a minute possibly. So scalping जब हम बात करते हैं तो इट्स अ वेरी शॉर्ट ट्रेडिंग, जहां पर हम 1 या 2 मिनट मैक्सिमम होल्ड करते हैं पोजीशन और एग्जिट और एंट्री करते हैं. देन the swing trading is basically a trading which is based on some momentum, right? So these are the things how we using. And intraday trading, buy in the morning and positions close before the closing of the market. So commodity market basically सुबह 9 से लेकर रात को 11:30 बजे तक है, जिसको आप देख सकते हैं. तो अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं तो आप 3:30 बजे तक इक्विटी में कर सकते हैं. उसके बाद आप कमोडिटी मार्केट को चूज कर सकते हैं. एंड इफ यू आर गुड इन if you are like to trade the volatility, so volatility is in the commodities. So basically it's a correlation of the volatility in the commodity, because whenever you saw a very big
volatility in the market, तो there should be a volatility in the commodity. तो commodity के अंदर volatility आपको देखने को मिलती है, और ये एक तरीके से that is a good कि आप at any point of time you can do entry and exit. Since morning से अगर आप देखेंगे तो morning से लेकर evening तक every time it has a volatility. तो volatility का कोई issue नहीं है, यहाँ पर volatility आती रहती है, तो इसलिए यहाँ पर आपको entry exit में कोई issue नहीं आता, और you can do multiple types of trade. So when I talk about the swing trading and scalping, so basically people are doing swing trading and scalping multiple times in a day. अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो जनरली लोग ट्रेड करते थे कि सुबह पोजीशन लेते थे, शाम को काटते थे, बट अब जो साइकोलॉजी चेंज हुआ है वो ये कि ट्रेडर्स आर डूइंग अ मल्टीपल ट्रेड्स. They didn't stuck only with the one trade, because every time market has a new dimension. So whenever you talk about the market, so every hour, every minute is very important for the market, because कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो इसलिए जहां हम पहले अगर आप एक आज से 20 साल पहले की बात करेंगे, तो जहां पर लोग ट्रेड करते थे कि आप सुबह पोजीशन लेके शाम को काटते थे, now it has been changed. Now people are doing trading within a minute or within a second. They are saying कि एक सेकंड में उनको कितना अमाउंट मिल रहा है और एक मिनट में उनको कितना अमाउंट मिल रहा है. So that is kind of thing, and generally these are totally based on the movement of the price. So movement of the price is very important while trading in any asset class. So ये जो टेक्निकल चार्ट के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे वो बेसिकली बेस्ड है मूवमेंट ऑफ द प्राइस. तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो पूरा मूवमेंट के ऊपर है. अगर प्राइस में मूवमेंट होगा तो आपका ग्राफ बनेगा, और अगर मूवमेंट नहीं होगा तो आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो उसमें कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा. सो बेसिकली इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्राइस मोमेंटम. तो हमको ये समझना है कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है. तो मैं आपको साथ साथ मैं स्काई जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जहां पर बहुत अच्छा सिस्टम है, जहां पर आप इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं, इजीली आप प्राइस मोमेंटम देख सकते हैं, जितने भी टेक्निकल टूल्स है आप वहां पे आप यूज कर सकते हैं, जितनी भी चीजें वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड यू विल एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू सी द मार्केट और हाउ टू लुक द मार्केट. So first of all, I will take some, very fastly, quickly with the technical presentation. So it's a study of price using historical price data. तो जो टेक्निकल चार्ट है बेसिकली इसका हिस्टोरिकल प्राइस डेटा को रीड करने की बात है. मींस इफ यू हैव हिस्टोरिकल डेटा देन यू कैन इजीली प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्राइस कि क्या फ्यूचर प्राइस हो सकता है ऑन द बेस्ड ऑफ हिस्टोरिकल. देखो अगर हम कमोडिटीज की बात करें तो कमोडिटीज में साइकिल होता है कि जनरली जैसे हम देखते हैं कि जनरली जून जुलाई के महीने में मार्केट थोड़ा सा डल रहता है, देन उसके बाद अगेन बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और कमोडिटीज में हम जनरली देखते हैं डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा रोल होता है. तो डिमांड सप्लाई की वजह से हम देखते हैं कि जनरली जब भी सीजन आते हैं कमोडिटीज में, जैसे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो जब भी अराइवल्स होते हैं प्राइस नीचे आता है, जब भी अराइवल एंड होता है तो प्राइस ऊपर जाता है. जैसे अगर हम बात करें गोल्ड की तो जनरली हम देखते हैं कि अगस्त के महीने से फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं, तो वही सौ कि जनरली उस टाइम पर वॉलेटिलिटी आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है. या फिर हम देखते हैं जनरली जब बजट्स आते हैं उस टाइम मोमेंटम देखने को मिलता है. सभी बजट आने वाला है तो आपको उसमें मोमेंटम देखने को मिलेगा. तो दीज आर ऑल थिंग्स व्हिच विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द प्राइस कि आपका जो टेक्निकल चार्ट है उस पर किस तरीके से होता है. तो बेसिकली हिस्टोरिकली जब आप देखते हैं कि हिस्टोरिकली प्राइस में क्या मूवमेंट था, तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि दैट इज शोइंग सम काइंड ऑफ द प्राइस एक्शन. सो वो प्राइस एक्शन को हम देखकर प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर प्राइस क्या होगा. तो ये हमको ध्यान रखना है जब भी हम टेक्निकल को देखते हैं, तो it is related with the historical price movement. This is based on law in demand and supply. तो demand supply basically आता है जन द प्राइस मूव. तो जब भी प्राइस मूवमेंट होगा तो आपका डिमांड सप्लाई की वजह से प्राइस मूवमेंट होगा. अगर डिमांड और सप्लाई नहीं होगा तो there will be a no movement. On 20 April 2020 we saw the negative price of crude oil almost -$40. वो क्यों आया था? क्योंकि डिमांड सप्लाई बिल्कुल मिसमैच हो गया था, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन लगा था और डिमांड बिल्कुल खत्म हो गया था, बट सप्लाईज जो थी वो ऑन द वे थी, जिसकी वजह से जो यूएस के अंदर आपके ऑयल शेल कंपनीज थी जो जनरली डील करती हैं क्रूड में, तो उनके पास सप्लाई बहुत बढ़ गया था, डिमांड खत्म हो गया था, तो उसकी वजह से क्रूड का प्राइस -$40 चला गया था. तो दैट इज द थिंग, इट्स टोटली बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. और अगर आप देख भी रहे हैं, अगर हम क्रूड और गोल्ड और सिल्वर की बात करें, ऑन द बैक ऑफ
geopolitical tension, on the back of political instability, on the back of weakness in dollar, and on the back of, you can say, the dollar index. तो ये मूवमेंट आया, तो ये गोल्ड सिल्वर में जो मूवमेंट आया, विल एबल टू प्रेडिक्ट कि पिछले, ये तो था फंडामेंटल। टेक्निकल अगर आप देखेंगे कि पिछले 5 सालों से लगातार गोल्ड सिल्वर में मोमेंटम आया, तो अगर कोई टेक्निकल वॉच कर रहा है, अगर वो टेक्निकल देख रहा है, ही कैन से दैट कि नाउ हिस्टोरिकली इज पॉजिटिव, देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर भी इसका पॉजिटिव होगा ऑन द बैक ऑफ द प्राइस ट्रेंड इन द टेक्निकल चार्ट। So basically it's based on the technical chart कि आपका हिस्टोरिकली या पिछले साल कैसा मूवमेंट था, उससे 2 साल पहले क्या मूवमेंट था, या पिछले 5 सालों में क्या मूवमेंट था, या फिर उससे 10 सालों में क्या मूवमेंट रहा। Then on the basis of that you can do a trading in the commodities, because commodity is a live product, right? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकल नहीं है। You can see a gold, you can see silver, you can see crude, you can see copper, zinc, lead, aluminum, and all the things. You can also use you are also using the natural gas. So these are all commodities which are basically physically exist, right? And totally it's based on demand and supply. The price movement is there. So whenever we talk about price movement, it reflects on the screen, and we captured this thing on the technical chart. So technical chart जब बनते हैं तो it will be show, I will show you on SDFC Sky किस तरीके से आप देख सकते हैं। तो टेक्निकल चार्ट को समझने के लिए 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, जिसको हम सब देख सकते हैं कि आपको एक एटलीस्ट ये पता लगेगा कि हाउ टू यूज द टेक्निकल चार्ट। सो फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? बेसिकली इट्स रिफाइंड रीजन फॉर द स्टॉक प्राइस मूवमेंट अप और डाउन। जनरली हम फंडामेंटल में ये ढूंढते हैं कि क्या रीजन है स्टॉक के ऊपर नीचे जाने के। तो जनरली जैसे जस्ट लाइक से हम बोले कि गोल्ड का प्राइस ऊपर क्यों गया, तो वी कैन से दैट कि यहाँ कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन था, ड्यू टू दिस इट इंक्रीज। But in technical analysis, we can say only the price factor of the thing. So we say that price discount everything. It means अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो might be कि there is something supportive for the price. अगर प्राइस नीचे आ रहा है, we can say that there is something which is negative for the price. Let's say example, we can say that अगर आप किसी स्टॉक को देख रहे हैं, या अगर आपने सपोज जीरा इज रिप्लेस इन NCDX, तो अगर आप एग्री कमोडिटी में जीरा को देख रहे हैं, 1 साल पहले जीरा का प्राइस ऑलमोस्ट 70,000 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा था, राइट? उस टाइम क्या था? एक्सपोर्ट डिमांड था, राइट? अगर आप अब देखेंगे तो अब जो है अराइवल बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से प्राइस नीचे आ गया। तो वी कैन से दैट कि दीज आर रीजन। बट अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो इन 2023 इट वाज ऑन ओवरबॉट, कि वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। नाउ इट इज करेक्टेड, नाउ इट इज ट्रेडिंग अराउंड 25,000। तो 70,000 से 25,000 वापस आ गया जीरे का प्राइस। वहीं अगर हम नेचुरल गैस के प्राइस को ट्रैक करें, लास्ट ईयर इट मेड अ हाई ऑफ 800, but right now it is trading around 185. So you can say that why it moved. So last year if you see the demand is there, right? तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, 800 रुपए चला गया शॉर्टेज की वजह से। बट अब अगर आप देखेंगे तो उसकी इन्वेंट्री काफी इंक्रीज हुई है, उसकी वजह से प्राइस अब पिछले 800 का हाई बनाने के बाद 150 के आसपास आ गया। तो दैट इज द थिंग कि प्राइस का मूवमेंट क्या होता है जनरली। ये अगर आप टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं तो आपको उसमें क्लियर दिखेगा कि जो प्राइस था, आई विल शो यू द नेचुरल गैस प्राइस आल्सो कि क्या मूवमेंट था। तो यू कैन इजीली कोरिलेट कि कितना मूवमेंट नेचुरल गैस में होता है। और गोल्ड का अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों से लगातार पॉजिटिविटी बनती हुई दिखाई दी थी। तो दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कैंडल स्टिक, राइट? कैंडल स्टिक्स में तो किस तरीके से हम देखते हैं, one is bullish. I will show you on SDFC Sky platform. Bullish candlesticks when the close is higher than the open, and bearish when the close is lower than the open. तो ये एक कैंडलस्टिक का पैटर्न है। 2 ही कैंडल बनती हैं जनरली, एक बुलिश और एक बियरिश। बुलिश कब होगी? जब मार्केट अपने क्लोज से ऊपर बंद होगा। बियरिश कब होगी? जब मार्केट अपने ओपन से नीचे क्लोज होगा, राइट? बुलिश कब होगी? जब मार्केट अपने ओपन से ऊपर बंद होगा। बियरिश कब होगी? जब अपने ओपन से नीचे बंद होगा। ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्मेशंस बहुत सारी हैं, देयर आर n नंबर ऑफ फॉर्मेशंस, बट बेसिक इज दैट कि एक बुलिश और एक बियरिश है, राइट? तो पैटर्न्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट कैंडल 2 ही तरीके की होंगी, बुलिश और एक बियरिश, राइट? अगर ऊपर बंद होगा तो बुलिश होगा, नीचे बंद होगा ओपन से तो दैट इज अ बियरिश। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आप उसमें कलर भी लगा सकते हो। ये फॉर्मेशन है बुलिश और बियरिश कैंडल की। तो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न जो है हाई होगा, हाई लो, दैट इज क्लोज है, यहाँ पर ये ओपन है। अगर ये आपका क्लोज जो है ओपन से ऊपर क्लोज होगा तो दैट इज ग्रीन कैंडल, इज अ बुलिश कैंडल। वहीं अगर क्लोज जो है वो ओपन से नीचे होगा तो दैट इज अ बियरिश कैंडल। तो आई विल शो यू ऑन द स्काई।
ये हमारा प्लेटफॉर्म है HDFC स्काई का, राइट। सो यहाँ पे आप ये हमारा HDFC स्काई का प्लेटफॉर्म है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको ऐसा विंडो मिलेगा स्काई का। ये हमारा लैपटॉप के ऊपर है, सेम आप मोबाइल ऐप के ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि मोबाइल ऐप का हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम आपको मोबाइल ऐप के थ्रू दिखाएं। आज हम डेस्कटॉप के ऊपर दिखा रहे हैं, क्योंकि डेस्कटॉप इजी होता है, क्योंकि चार्ट आपको बड़ा दिखाई देगा तो आप इजीली यूज कर सकते हैं। मोबाइल जब आप चार्ट इसके ऊपर यूज करना समझ जाएंगे तो आप इजीली मोबाइल पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम फंक्शन है, कोई चेंज नहीं है, राइट। तो कमोडिटी में जब आप जाएंगे, सपोज हमको, अब आपको एक एक करके मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। सपोज आपको गोल्ड सर्च करना है, यहाँ पर आप गोल्ड लिखेंगे तो उसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है, वो यहाँ पर आपके मेंशन हो जाएंगे, राइट। December contract, October contract, August contract, April and Feb. So these are the all contract which are available for trading. Suppose हमने गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट लगाया, वो यहाँ पर आपको मेंशन हो जाएगा ये आपकी मार्केट वॉच में। तो अगर हम गोल्ड के टेक्निकल चार्ट को देखते हैं, लेट्स सी, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है चार्ट इन्फो। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस बीच वाले स्पेस में आपका चार्ट ओपन होगा, राइट। जब आप इसको थोड़ा सा इधर ड्रैग करेंगे तो यू विल सी अ बिगर पेज, जहां पर आपको पूरा बड़ा चार्ट शो करेगा। तो दैट इज द चार्ट ऑफ गोल्ड। अभी गोल्ड का प्राइस चल रहा है 73,315, राइट। तो दैट इज द ट्रेंड। तो अब आप देखिए, जो हम कैंडल स्टिक्स के बारे में बात कर रहे थे कि बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ऊपर देखिए, यहाँ पर एक स्क्रोल प्राइस चल रहा है कि अब हम एक एक कैंडल के ऊपर अगर माउस लेके जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि कौन सी कैंडल क्या है, राइट। तो ये आप किसी भी कैंडल, सपोज हम इस कैंडल के ऊपर लेके जाते हैं जो भी लास्ट 15 मिनट पहले बनी है, ये कैंडल बनी है आज 15 जुलाई को 4 बजे, राइट। इस कैंडल की अगर आप प्रॉपर्टी देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है OHLC। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो बड़ी स्क्रीन है इसकी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें क्या आ रहा है कि ओपन हुआ कैंडल ये 73,213 में, हाई गया 73319 में, लो बनाया 73213 और क्लोज किया 73302। तो मार्केट ओपन हुआ था 73213 पे उस 15 मिनट में, और ये क्लोज हुआ 73302, राइट। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट की जो क्लोज हुआ उस 15 मिनट में ऊपर की तरफ क्लोज हुआ। तो इट मींस कि ये एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना, राइट। तो ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना, इसका मतलब दैट इज अ बुलिश कैंडल। अगर आप एक रेड कैंडल में जाते हैं, हमने यहाँ पर इसको कलर से आइडेंटिफाई किया हुआ है कि जो रेड कैंडल होगी वो बियरिश होगी और जो ग्रीन होगी वो बुलिश होगी। तो अगर आप रेड वाली में आते हैं, मान लीजिए हम इसके पीछे रेड वाली कैंडल है जो सुबह 12:15 बजे के आसपास बनी है, तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ओपन जो है करीबन 73135 पे हुआ था और सी मतलब क्लोज हुआ 73055। तो मींस प्राइस जो थे वो अपने ओपन से नीचे क्लोज हुए, तो उसकी वजह से रेड कैंडल बना है। अगर ये ओपन क्लोज जो है वो ओपन से ऊपर बंद होता तो वो आपको नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव आपकी बुलिश कैंडल बनती। तो ये आइडेंटिफिकेशन है कि किस तरीके से आप चार्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आए 45 मिनट्स की भी, तो आपका ये एक कैंडल टाइमिंग को शो करता है। तो ये जहाँ पे जो कैंडल्स हैं, ये जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ 45 मिनट, तो एक कैंडल जो है वो 45 मिनट की मूवमेंट को शो करता है। तो यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं जिसको आप लगा सकते हो। आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, आप 1 घंटे की भी लगाएंगे तो आप एक कैंडल जो है आपकी 1 घंटे की बन गई। अगर आप डेली में आते हैं तो एक कैंडल जो है आपकी डेली की बन गई, राइट। तो इंट्राडे ट्रेडिंग आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट 5 मार्च को ओपन हुआ था और 5 मार्च से इसमें डेली की एक कैंडल बन गई। तो अगर हम आज की बात करें तो आज अगर आप छोटा कर सकते हैं और इसको इधर या लेफ्ट और राइट ड्रैग भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें आज का जो 15 जुलाई का कैंडल है, इसमें ओपन हुआ है मार्केट 73105 पे और अभी चल रहा है 73315। तो दैट इज द अगस्त कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो इट मींस कि जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पर मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप जो भी प्राइस चल रहा है क्लोजिंग
वो आपके ओपन से ऊपर चल रहा है। सुबह ये गोल्ड का प्राइस नेगेटिव 200 रुपए चला गया था। अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको 1 आवर में करता हूं तो यू विल सी कि मॉर्निंग के टाइम पे ये प्राइस नीचे आया था, राइट, और उसके बाद फिर ये वापस बढ़ना स्टार्ट हुआ, राइट। तो ये आप देख सकते हैं कि ये डेली का मूवमेंट है। मार्केट खुला 9:15 पे, 9 बजे के आसपास, उसके बाद नीचे गया और उसके बाद वापस ऊपर आना चालू हुआ, राइट। तो इट मीन्स कि इसका हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकली आपको पता लग गया कि पिछले दिनों में कैसा ट्रेंड रहा है गोल्ड का। तो आप देख सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ था 65,000 के आसपास करीबन 5 मार्च को, और उसके बाद से रेगुलर ये प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। इट मीन्स कि इसका एक जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 दिनों में अगर आप कंपेयर करते हो तो पिछले 2 दिनों में कैसी कैंडल बनी है। तो हम बात कर रहे हैं आज 15 तारीख की। यहाँ पे 12 जुलाई को अगर आप देखेंगे तो 12 जुलाई को प्राइस -25 बंद हुआ, बट ये अपने ओपन से ऊपर की तरफ बंद हुआ। ओपन हुआ था 73183 में, क्लोज किया 73285। वहीं अगर हम देखते हैं 11 तारीख को ओपन हुआ था 72807 में और क्लोज हुआ 73310। वहीं उससे पहले अगर हम आते हैं तो ओपन हुआ था 10 जुलाई को 72555, क्लोज हुआ 72700। तो इट मींस कि ये सभी मार्केट जो है अपने ओपन से ऊपर बंद हुई। बट अगर आप उससे पहले जाएंगे 9 जुलाई को, गोल्ड ओपन हुआ था 72577 में और क्लोज हुआ 72432। इट मींस कि गोल्ड उस दिन नेगेटिव बंद हुआ था अपने ओपन से नीचे, तो उसकी वजह से रेड कैंडल बना। मार्केट ओपन हुआ 8 तारीख को 73,000 पे और नीचे बंद हुआ 72343, करीबन ऑलमोस्ट 700 पॉइंट नीचे बंद हुआ। इट मीन दैट इज अ नेगेटिव कैंडल, तो उसकी वजह से रेड कैंडल बना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट अपने ओपन से ऊपर क्लोज होगा तो इट मींस कि मार्केट जो है पॉजिटिव वे में क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या कौन सी कैंडल बुलिश है, कौन सी बियरिश है। तो उसमें भी फॉर्मेशंस हम देखेंगे किस तरीके के फॉर्मेशंस बनते हैं, राइट। तो नाउ अब ये टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टाइमिंग्स है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट, 30 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, राइट। तो जैसा कि आई टोल्ड यू कि देयर आर सो मेनी ट्रेडर्स हु ट्रेड on the basis of timing. Means if you want to do a swing trading, you can use maximum 5-minute chart, right? Because entry and exit on a very fast mode. तो very fast mode के लिए आपका टाइम स्पेन भी बहुत छोटा होना चाहिए, राइट। अगर आप ट्रेड देख रहे हैं, आपको अगर ट्रेड करना है 3 मिनट के चार्ट पे, राइट, तो आपका एंट्री और एग्जिट भी आपका मैक्सिमम 10 से 15 मिनट हो जाए। दैट इज कॉल्ड द टाइम स्पेन, कि आपका कितना टाइम आप वैलिडेट आप कर रहे हो। मींस अगर मैं कोई भी कैंडल देख रहा हूं, इट इज अ साइकोलॉजी थिंग, कि अगर आप कोई भी कैंडल को देख रहे हैं, राइट, और उसका टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर सीइंग अ 3 मिनट कैंडल, इट मींस कि उसका 3 मिनट का ही प्राइस मूवमेंट हुआ है। तो उस 3 मिनट की वैलिडेशन कब तक रहेगी। तो दैट इज अ थिंग कि अगर आप नेक्स्ट 10 से 15 मिनट में एग्जिट कर गए तो इट मींस कि आप उसको वैलिडेट कर रहे हो, राइट। तो 3 मिनट की अगर आप कैंडल देख रहे हो या 5 मिनट की कैंडल आप देख रहे हो या 1 मिनट की आप कैंडल देख रहे हो, तो उसको आप उतने जल्दी ही आपको एग्जिट भी करना पड़ेगा। क्योंकि एवरी टाइम आप अगर सपोज ये 3 मिनट का चार्ट है, तो अगर आपको दिख रहा हो तो यू कैन इजीली अमेजिंग कि आपने अगर पोजीशन ली है, उसको आपने जल्दी से एग्जिट नहीं किया तो फिर एक करेक्शन भी आया उसमें। जैसे अगर आपने यहाँ पर पोजीशन ली तो करेक्शन आया, इसके बाद आपने यहाँ पे पोजीशन ली तो फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया, देन अगेन मार्केट ऊपर चला गया। तो दैट इज थिंक कि अगर आप टाइम फ्रेम को अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि जितना छोटा टाइम आप देख रहे हो उतना ही आपको छोटे टाइम में एग्जिट भी करना पड़ेगा। एग्जिट करना पड़ेगा या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज कर सकते हो। तो जनरली जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं वो स्टॉप लॉस टारगेट के साथ होती हैं। तो उस टारगेट स्टॉप लॉस के साथ अगर आपने एंट्री ली है और आप अगर प्रॉफिट में है, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि या तो आप एग्जिट करें या फिर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। आइदर यू कैन यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कि एटलीस्ट आप अपने स्टॉप लॉस को एट कॉस्ट पे शिफ्ट कर लें, जिससे कि अगर मार्केट करेक्ट होता है तो यू कैन इजीली exit at cost without any loss। तो ये यहाँ पर आप कर सकते हैं। इफ यू सी अगर आपने 15 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हैं
तो 15 मिनट के चार्ट में अगर आप यूज करते हैं, यू कैन एग्जिट विद इन नेक्स्ट 45 मिनट्स और 1 आवर मैक्सिमम। तो एज पर द ट्रेडर जनरली अगर आप 15 मिनट का चार्ट यूज करते हैं तो आपका एग्जिट पॉइंट भी 45 मिनट से 1 घंटे का होना चाहिए। मींस ये एक वैलिडेशन है कि हम कितने टाइम को देखकर हम कितना कर रहे हैं, और आपको लगता है कि आगे भी कंटिन्यू होगा तो आप उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि अगर मार्केट आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो, तो अगर वो 15 मिनट का चार्ट 1 घंटे के अंदर नहीं मूवमेंट हुआ तो पॉसिबल है कि उसका फिर वो इनवैलिड हो जाएगा, उसका मूवमेंट नहीं होगा। अगर वो 15 मिनट का चार्ट ने मूवमेंट दिखा दिया आपको 1 घंटे के अंदर में, सपोज आपको लग रहा है कि 15 मिनट में मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो यू कैन सी, जैसे आप ये देखिए यहाँ पर एक फॉर्मेशन है हियर, इफ यू आर सीइंग, देखिए ये एक पैटर्न बना है जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से पियर्सिंग टाइप का पैटर्न है, राइट, कि एंगल्फिंग जिसको हम बोलते हैं। तो एंगल्फिंग में अगर आप देखेंगे तो एक ग्रीन कैंडल बना और अगली कैंडल बनी रेड। रेड कैंडल ने ग्रीन को पूरा कवर कर लिया। तो बेसिकली अगर हम इसको वेरी लेमैन लैंग्वेज से बात करें कि इस कैंडल में बुलिश आए, बट यहाँ पर बेरिश ने जोर दिखाया और उसको पूरा कवर कर लिया। तो इट मीन्स कि जब ऐसा फॉर्मेशन बनता है, जब किसी रेड को, ग्रीन कैंडल को, तेजी को जब एक मंदी पूरा कवर कर लेता है, तो उसके बाद आप देखिए कितना फॉल, बड़ा फॉल यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया, राइट। तो दैट इज अ साइन कि अगर आप टेक्निकल चार्ट देख रहे होते तो आप डेफिनेटली यहाँ पर बाय तो नहीं करते, तो यहाँ पर आप एटलीस्ट अलर्ट हो जाते कि नहीं यहाँ पर ये बना है फॉर्मेशन, इट मीन्स कि यहाँ पे प्राइस नीचे आएंगे, दैट इज कॉल्ड बियर्स बियरिश एंगल्फिंग। तो यहाँ पर इसको एंगल्फ कर लिया बियरिश ने, तो ये एक नेगेटिव में आ गया। अब आप अगेन यहाँ पर देखिए, इससे पहले, इसके बाद एक छोटा सा कैंडल बना, राइट। ये कैंडल जो बना, इट्स शोज कि यहाँ से कुछ ना कुछ डोजी टाइप का कैंडल। तो जनरली डोजी कैंडल क्या होता है, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, कैंडल्स की फॉर्मेशंस हैं जो कि जनरली आपको देखने को मिलेंगी, राइट। जब ये देखने को मिलती है और जब ये स्पॉट होती हैं तो ये बहुत बड़ा चमत्कार दिखाती हैं, राइट। यू कैन से दैट द मिरेकल कैंडल्स, राइट। तो डोजी कैंडल जब मार्केट टूट रहा हो तब बने या मार्केट ऊपर जा रहा हो तब बने, तो वो वहां से टर्न अराउंड करता है। तो ये मार्केट टूटते हुए में डोजी कैंडल बना और यहां से ये ऊपर की तरफ रिकवर होता हुआ दिखाई दे। तो आप देखिए कंटिन्यूअसली, अभी हम देख रहे थे गोल्ड का प्राइस 73-330 के आसपास था, अभी अभी में ये 30 रुपए बढ़ गया। तो अभी लाइव मार्केट चल रहा है और ये मैं आपको डेमो लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ। तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता कि आप टेक्निकल चार्ट देख रहे हो, टेक्निकल चार्ट में आप किस तरीके से यहाँ पे लाइव देख रहे हो, राइट। तो यहाँ से एक बाउंस बैक आया क्योंकि यहाँ पे डोजी कैंडल बना था। तो आपको ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप इंट्राडे में, और इंट्राडे में रेगुलर बनती हैं, और जब ये टेक्निकल कैंडल्स बने तो आप अलर्ट हो जाइए कि नहीं कुछ ना कुछ होने वाला था। अब देखिए अभी 375 हो गया, 15 मिनट, 1 मिनट के अंदर 15 रुपए भाव बढ़ गया गोल्ड का। तो ये दैट इज अ थिंग कि किस तरीके से आप गोल्ड को यहाँ पे आप देख रहे हो, राइट। अब हम देखते हैं, चलो दूसरी कमोडिटी में वॉच कर लेते हैं कि क्रूड का अगर हम देखते हैं तो यहीं पे ही स्क्रीन है, यहीं पे आप डायरेक्ट जाकर आप चेक कर सकते हो। सपोज हमें क्रूड का प्राइस देखना है, तो क्रूड का अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है, तो लेट से हम क्रूड का जुलाई कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं। तो ये हमने इसमें कंपेयर लगाया है, राइट। यहाँ पर आप मींस इसमें आप कंपैरिजन भी आप इजीली कर सकते हो, आपको दो प्राइस लगाने हैं तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। नाउ दिस इज द प्राइस चार्ट ऑफ क्रूड, जहां हम गोल्ड का प्राइस ऊपर देख रहे थे, नाउ आप गोल्ड का प्राइस ऊपर की तरफ देख रहे थे, क्रूड का प्राइस नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे देखिए ऊपर भी बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ थिंग एंगल्फिंग पैटर्न बना है, राइट। तो देखिए जो हम एंगल्फिंग की बात कर रहे थे, यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग बना है, तो राइट देखिए ये एंगल्फिंग पैटर्न बना। तो जब ये पैटर्न बनता है तो इट मींस नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आता हुआ दिख रहा है। देखिए उसके बाद कितना बड़ा फॉल क्रूड में आता हुआ दिखाई दिया। तो कमोडिटी के अंदर अगर आप देखेंगे तो अगर आपने कोई स्पॉट किया
तो इट मीन्स कि वो आपको श्योरिटी दिखाएगा ही दिखाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि अगेन मार्केट नीचे करेक्ट हुआ एंड अगेन यू स्पॉट हियर ए स्मॉल कैंडल, राइट, जस्ट लाइक अ डोजी, राइट। तो यहाँ से आप देखिए एक रिकवरी देखने को मिली, तो दैट इज अ 15 मिनट कैंडल, और आप देखिए कंटिन्यूअसली अब नीचे फॉलो होता हुआ दिखाई दिया। अगेन हायर लेवल पे इसको बड़ा करते हैं, यहाँ पे आप देखिए मल्टीपल डोजीज देखने को मिली। इट मीन्स कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ पर नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर जो ये कैंडलस्टिक बनी है डोजी, इट मीन्स कि ये जो ट्रेंड डाउन था यहाँ से बाउंस होने की कोशिश करी, राइट, बट अगेन यहाँ पर डोजी बना। इट मीन्स कि इसके अंदर दम नहीं है, राइट। अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल बननी स्टार्ट होती जैसे यहाँ पर बननी स्टार्ट हुई थी, तो जब आप ऐसा फॉर्मेशन देखें कि मल्टीपल डोजीज बन रही है, इट मीन्स कि मार्केट अगेन उसी डायरेक्शन में जा सकता है जो उसका हिस्टोरिकल डायरेक्शन है। तो हिस्टोरिकल डायरेक्शन क्या है इसका, कि प्राइस जो है वो हायर लेवल से नीचे करेक्ट हुआ है। नाउ अगेन इट विल कंटिन्यू द हिस्टोरिकल ट्रेंड, और आप देखिए कंटिन्यूअसली इट इज फॉलिंग डाउन। तो करंटली जो प्राइस चल रहा है इसका अभी 6863, तो ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा कुछ कैंडल्स हैं, जैसे आप इस टाइप की अगर कैंडल स्टिक को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड हैमर, जो बहुत रिनोन्ड है, जनरली लोग इसके बारे में काफी बात करते हैं, आपने सुना भी होगा। तो जब ऐसी कैंडल बनती है, इट इज ऑल्सो शोइंग कि यहाँ से ट्रेंड आपका रिवर्सल हो सकता है, राइट। तो अगर ऐसी कैंडल बने तो इट मीन्स कि या तो आप एग्जिट हो जाए, या फिर आप अपने, अगर आपने बेच रखा है, क्योंकि अगर ये नीचे की तरफ बना है तो जनरली हैमर का यूज तभी है जब वो गिरती हुई मार्केट में बने। अगर वो गिरती हुई मार्केट में बन रहा है, इट मीन्स इट्स अ पॉइंट जहां पर आप यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस ले सकता है प्राइस। सो दैट इज द थिंग कि आपका जो रिकवरी है वो ऊपर की तरफ आ सकती है। तो अगर आपने ऐसा स्पॉट किया है तो इट मीन्स कि देयर इज अ चांस कि मार्केट यहाँ से रिकवर हो सकती है। तो ऐसे केस में यू कैन यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और एग्जिट, राइट। तो यहाँ पर आप ये यूज कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम सपोज कई क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हम ऑप्शन चेन के प्राइस भी देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर आपको क्रूड देखना है तो, क्योंकि क्रूड के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑप्शंस की जो मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा देखने को मिली, और वॉल्यूम वाइज भी। तो हमारे जैसे स्काई में आपको ऑप्शंस की जो प्रीमियम्स होते हैं उसका भी टेक्निकल चार्ट देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है जो कि आपको जनरली कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एचडीएफसी स्काई में बहुत अच्छी फैसिलिटी है जिसको आप यूज कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, अगर आप ऑप्शन चार्ट देख रहे हैं, क्योंकि देयर आर सो मेनी ट्रेडर्स, और हमारे कुछ क्लाइंट्स भी ऐसे हैं जो कि ऑप्शन चार्ट को देख के ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। दे आर नॉट thinking about the call put ratio, they are not even thinking about the open interest, they just doing trading with the technical chart, because technical charts में we covered all the things. So technical charts क्या, generally it shows that price discount everything. तो जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग मींस प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, मींस इट्स डिस्काउंट ओपन इंटरेस्ट, इज डिस्काउंट वॉल्यूम, इज डिस्काउंट कॉल एंड पुट रेशोज। तो ये सब आप भूल जाइए। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो टेक्निकल चार्ट इज द बेस्ट टूल जहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल चार्ट दिख रहा है, अगर आप टेक्निकल चार्ट समझते हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग को भी यूज कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऑप्शन ट्रेडिंग को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्रूड के जो भी ऑप्शन लगाना चाहते हैं, जैसे अगर आपको सर्च करना है तो आप क्रूड ऑयल का 7000 आप लिखेंगे तो आपको सारे कॉल पुट आ जाएंगे हर एक कॉन्ट्रैक्ट के, जुलाई अगस्त सितंबर। सपोज हमें 6900 को चेक करना है तो 6900 यू विल गेट हियर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल एंड पुट, राइट। यू कैन हियर सी 6800, आप जस्ट लिखेंगे आपको पूरा चार्ट यहाँ पे बन जाएगा। यू कैन इजिली यूज, अगर आपको 6500 देखना है यू कैन यूज 6500 कॉल एंड पुट। इफ यू यूज 7100 कॉल एंड पुट then you can see a 7100 call and put here. So all strike price available here, almost you can say 50 strike price here and there you can use by the using. वहीं अगर आपको नेचुरल गैस में ट्रेड करना है तो नेचुरल गैस इज ऑल्सो ऑप्शन पार्ट, पीपल आर यूजिंग दिस। तो अगर आपको ऑप्शन चेक करना है नेचुरल गैस का तो यहाँ पर आप नेचुरल गैस के ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। जस्ट लिखिए नेचुरल गैस और कितने स्ट्राइक प्राइस में आपको लेना है, यू विल सी कॉन्ट्रैक्ट वाइज कॉल एंड पुट, जिसके सारे चार्ट अवेलेबल हैं जिसको आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। तो ये नेचुरल गैस का 200 का कॉल ऑप्शन है जिसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दैट इज अ थिंग वेयर यू कैन यूज। अब आप ये देखिए नेचुरल गैस के अंदर एक बड़ा अच्छा फॉर्मेशन बना है जिसकी वजह से हमने इसके प्रीमियम्स में बढ़त बनते हुए देखी है। देखिए यहाँ पर हम देख रहे थे बियरिश एंगल्फिंग, तो यहाँ पर अगेन एक बुलिश एंगल्फिंग बना है। रेड
वाली कैंडल को यहाँ पे इसने कवर कर लिया है, राइट, ग्रीन कैंडल ने। अगर आपको दिख रहा हो, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। रेड कैंडल मार्केट गिरा, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, देन उसके बाद अगेन एक अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला, राइट। तो उसके बाद हमने देखा कि मूवमेंट कैसे ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। सो ऐसा अगर फॉर्मेशन आपको बनता है, मिलता है एंगल्फिंग का, तो दैट इज काइंड ऑफ की यहाँ पर आपका प्राइस ऐसे आता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद देखिए एक फॉर्मेशन यहाँ पे बना जिसको हम जनरली बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं काले बादल आते हुए दिखाई दिए, जिसको अगर हम हिंदी में बात करें कि अगर तेजी बन रही है और ऊपर से सडनली मार्केट में ब्रेक लगे, तो दैट इज कॉल्ड द डार्क क्लाउड कवर। की एक छोटा सा बड़ा ग्रीन कैंडल बना, बट एक छोटा सा उसमें रेड पॉइंट आ गया, तो इट मीन्स कि जैसे यहाँ पर आपने देखा कि रेड पॉइंट आया है, देन अगेन मार्केट नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये फॉर्मेशंस है, जब आप टेक्निकल चार्ट देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस होती हैं, जिसमें जनरली आपको ट्रेंड देखने को मिलता है। जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, जो बहुत छोटे टाइम के लिए ट्रेड करते हैं विद बिग क्वांटिटी, वो ऐसे पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। तो आप देखिए, अगर किसी ने यहाँ पर बेचा होता 5 रुपए 20 पैसे के आसपास में, तो उसने कवर किया करीबन 4 रुपए 50 पैसे, तो करीबन 1 रुपए के आसपास उसको मिला। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1 रुपए का मतलब हो गया 1250 रुपए। तो नेचुरल गैस के अंदर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और 1 रुपए में भी ट्रेड लेते हैं, तो आप सारी कॉस्ट निकाल के भी 1000 से लेकर 1100 रुपए आपकी पॉकेट में आ सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स के थ्रू दे आर डूइंग अ मल्टीपल ट्रेडिंग। अगर हम 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, वहीं अगर आप इसको 1 घंटे का चार्ट करके देखेंगे तो यू विल सी की किस तरह का मूवमेंट होता है। तो टाइमली अगर आप देखेंगे तो प्राइस मोमेंटम जो है आपको स्मॉल टाइम फ्रेम में काफी देखने को मिलेगा, जो कि एचडीएफसी स्काई में अवेलेबल है। आप 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 45 मिनट 1 आवर, यू कैन सी एनी टाइम फ्रेम, राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द थिंग। सो नाउ इसमें एक चीज और है, जनरली लोग यूज करते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। तो हमारे स्काई के अंदर ट्रेंड लाइन का भी टूल है। तो यहाँ पर जब आप जाते हैं तो एक ग्रीन कलर का बटन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। सिंपल डिलीट करने का बटन है, आप सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए। तो कभी आप स्टक हो किसी चीज में, तो आप सिंपल जो भी आपको डिलीट करना है उसको सेलेक्ट कीजिए और उस पर डिलीट का बटन दबा दीजिए, तो वो डिलीट हो जाएगी, राइट। तो अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं? ट्रेंड लाइन का ड्रॉ करने का सिंपल रूल है, जो भी हिस्टोरिकल हाईज है या हिस्टोरिकल लोज है, जब आप उसको आपस में कनेक्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका ट्रेंड कैसा। तो देखिए, जब नेचुरल गैस की हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस की, तो यहाँ पे आप देखिए कंटिन्यूअसली प्राइस नीचे आता हुआ दिखाई दिया। तो अगर हम इसके हाईज को कनेक्ट कर रहे हैं, राइट, तो हाईज को आप कनेक्ट करते दिख रहा है, तो देखिए कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड में आता हुआ दिख रहा है। तो राइट, इससे आपको ये पता लग रहा है कि नेचुरल गैस जो है वो डाउन ट्रेंड में, बट इसने नेचुरल गैस ट्रेंड लाइन के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ से आप देखिए कंसोलिडेशन आया। तो राइट, अगर आप इसको बड़ी पिक्चर करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो इसका डाउन ट्रेंड था वो अब ऑलमोस्ट ओवर होता हुआ दिख रहा है, राइट। तो ओवर होता हुआ मतलब इट की अब जो प्राइस है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर आते हुए दिख रहे हैं और उसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से नाउ वी आर सीइंग अ पॉजिटिव मोमेंटम इन द नेचुरल गैस प्राइस, राइट। अब हम सिल्वर का देखते हैं, बिकॉज सिल्वर इज द मोस्ट वॉलेटाइल एंड मोस्ट यू कैन से ट्रेडेबल कमोडिटी। तो ये 1 आवर का चार्ट है सिल्वर का। तो अगर हम देखें तो सिल्वर में भी सुबह से नेगेटिव ट्रेंड चल रहा था, सडनली इसमें पॉजिटिव मोमेंटम आया क्योंकि इसका हिस्टोरिकल ट्रेंड पॉजिटिव है। तो अगर आप इसको डेली चार्ट में देखेंगे तो यू विल सी कि हिस्टोरिकल कितना इंपॉर्टेंट होता है। जनरली लोग ट्रेड करते हैं विदाउट हिस्टोरिकली, तो आप हिस्टोरिकली अगर आप देख रहे हैं तो यू विल इजीली गेट कि क्या उसका ट्रेंड है। तो अगर आप देखेंगे तो यू विल सी कि हिस्टोरिकली प्राइस मूव होना स्टार्ट हुआ था और एक पॉजिटिव मोमेंटम में है। अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन में है, बट स्टिल ट्रेंड इज पॉजिटिव, तो जिसकी वजह से ये अब यहाँ पे स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। अगर आप आज की बात करेंगे, आज कैसा मूवमेंट रहा, तो वी कैन कन्वर्ट इन 15 मिनट्स। यू विल सी कि मार्केट 15 तारीख है, आज ओपन हुआ था, दैट इज ओपनिंग पॉइंट, राइट। गैप से ओपन हुआ, प्राइस ऊपर गया, अगेन यहाँ पर एक एंगल्फिंग बना, बियरिश एंगल्फिंग। उसके बाद आप देखिए कंटिन्यूअसली फॉल, और देखिए आज ही इसमें डोजी भी बनता हुआ दिखाई दिया। देखिए ये बना था 12:30 बजे के आसपास, राइट। तो 12:30 बजे के आसपास डोजी बना और एक हैमर भी बना एक तरीके से। यू कैन सी कि एकदम गिरती मार्केट में बना ये, तो इट मीन्स कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है। देखिए यहाँ से पूरा रिवर्सल होता हुआ दिखाई दिया, करीबन 92,400 के लेवल के आसपास से ये रिकवर हुआ और अभी चल रहा है 92,900। तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट थे
अगर आपने इस मूवमेंट में आपने 100 पॉइंट भी कमा लिए तो इट मीन्स कि यू कैन अर्न 3000 रुपीज इन अ सिल्वर, राइट। तो टेक्निकल चार्ट्स का ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आप पहले प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि क्या प्राइस जा सकता है, राइट। तो अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग कर रहे हैं और अगर आप टेक्निकल चार्ट्स को देख रहे हैं तो आप एसडीजी स्काई को जरूर यूज करें, क्योंकि इसमें आपको सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, सारे इंडिकेटर्स हैं। यहाँ पर आप कोई भी इंडिकेटर लिखें, अगर आप आरएसआई लिखते हैं तो आपको आरएसआई मिलेगा, जिसको हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि किस तरीके से हम टेक्निकल चार्ट्स को यूज करते हैं। आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से टेक्निकल चार्ट्स को बेसिकली हम कैंडल स्टिक्स को किस तरीके से फॉर्मेशन करते हैं। इसमें आपको एक मूविंग एवरेज अगर आप देख रहे हैं तो आपको एक मूविंग एवरेज और बताता हूं मैं मूविंग एवरेज किस तरीके से यूज करते हैं। तो मूविंग एवरेज अगर हम यूज करते हैं वेटेड, तो वेटेड मूविंग एवरेज एक बड़ा अच्छा टूल है जिसको आप यूज कर सकते हैं। इसमें हम कुछ टाइमली यूज करेंगे, हम इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। हम मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं 10 दिन का और 20 दिन का, राइट। 10 दिन का इसलिए बिकॉज 2 हफ्ते में 10 ट्रेडिंग डेज होते हैं, और 20 दिन इसलिए क्योंकि पूरे महीने में आपके ऑलमोस्ट 20 ट्रेडिंग डे होते हैं। तो हम 10 और 2 हफ्ते और 4 हफ्ते का हम लेके चल रहे हैं, तो ये आप कोई भी आप लगा सकते हैं। मूविंग एवरेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मूविंग एवरेज से हम इसको हम साइंटिफिक भी बोलते हैं, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक। आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट सुना होगा, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन साइंटिफिक, राइट। चंद्रयान ऊपर गया था आकाश में, वो भी साइंटिफिक था, वो भी रेशोज के थ्रू ऊपर गया था। तो बहुत सारी चीजें जिसको हम साइंटिफिक देखते हैं। अगर आप कभी माउंटेन्स को देखें तो वो भी रेशो में डिवाइड होते हैं, तो रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी गाड़ी की जब आप एवरेज निकालते हो दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एवरेज, राइट। तो एवरेज आर द मोस्ट इफेक्टिव टूल इन माय व्यू, कि अगर आप टेक्निकल चार्ट यूज करते हैं तो मूविंग एवरेज आप यूज कर सकते हैं। मूविंग एवरेज का सिंपल सा रूल है कि अगर आपका करंट प्राइस जो है 10 डे के ऊपर चल रहा है, आपने 10 दिन का एवरेज निकाला और करंट प्राइस अगर आप देख रहे हैं अगर वो 10 डे के ऊपर चल रहा है, इट मींस इट्स अ पॉजिटिव थिंकिंग, इट्स अ पॉजिटिव ट्रेंड। और अगर वो 20 के ऊपर चल रहा है तो अगेन यू कैन ऐड। तो आप हमारे इस सॉफ्टवेयर में जो है इजीली मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। मैंने आपके सामने लगाई है अभी। तो रेड वाली जो है दैट इज अ 10 डे और ग्रीन वाली 20 डे मूविंग एवरेज। दीज आर द टू मूविंग एवरेज व्हिच कैन यू यूज थ्रू द ट्रेडिंग, राइट। तो ये मूविंग एवरेज इसको आप मोबाइल पर भी लगा सकते हैं। अगर आप सेल फोन पे ट्रेड कर रहे हैं, आईफोन है या एंड्रॉयड है, वहां पर आप जब स्काई को डाउनलोड करेंगे, जब आप अपने क्लाइंट यूजिंग पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, यू विल इजीली पुट दिस टेक्निकल टूल्स इन योर मोबाइल ऐप। तो कमोडिटीज में आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा फंडा है, जब 10 डे जो 10 डे मूविंग एवरेज है जब नीचे से ब्रेक करेगा, राइट, प्राइस को, तो जब आपका प्राइस 10 डे को ब्रेक करेगा तो दैट इज अ फर्स्ट बाय, और जब वो प्राइस 20 डे को ब्रेक करेगा तो दैट इज अगेन अ मोमेंटम। तो जब नीचे से मोमेंटम आता है, ऐसे राउंडिंग बनेगा, तो दैट इज अ फर्स्ट पॉइंट टू बाय, राइट। तो पहले प्राइस ने 10 डे को ब्रेक किया, देन उसके बाद मूव करता वो ऊपर चला गया, इट मींस इट्स ना पॉजिटिव ट्रेंड, राइट। ऊपर जब ऐसे स्लोप बनेगा ऊपर से नीचे की तरफ, तो दैट इज पॉइंट ऑफ बुक प्रॉफिट, राइट। तो जनरली मूविंग एवरेज को जनरली जो एल्गो ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत यूज करते हैं। तो एल्गो ट्रेडर्स ट्रेडिंग जो करते हैं, जो मशीन ट्रेडिंग करते हैं, दैट इज द बेस्ट टूल। जो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं वो इसको यूज करते हैं। जब आपका प्राइस 10 डे के ऊपर चले, then it means it's a positive trend, then you can again add the position if it breaks on 20 days. So that is a kind of psychology जो traders इसको यूज करते हैं। तो मूविंग एवरेज इज द गुड टूल जिसको आप इजीली यूज कर सकते हैं एंट्री और एग्जिट के लिए, राइट। इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं 5 मिनट में। तो 5 मिनट में आपको अगेन एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो रेड वाली लाइन है ये 10 डे की है और ग्रीन वाली जो है 20 डे की है। तो अगर प्राइस पहले 10 डे को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए ये मैंने 5 मिनट पे लगाया है। 5 मिनट पे इट ब्रीचेस द 5 मिनट, राइट। 10 डे को उसने ब्रीच किया तो दैट इज अगेन एड 1 पॉइंट। अगर ये 20 डे को भी ब्रेक कर देता तो दैट इज अगेन अ पॉइंट ऑफ इंक्रीज। तो यहाँ से आप देखिए अच्छा खासा मूवमेंट मिला। तो इट मीन्स कि अगर आपको 100 से 200 पॉइंट मिल रहे हैं 5 मिनट में, दैट इज कॉल्ड 3000 3500। तो ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है। और एग्जिट के लिए जैसे ये नीचे स्लोप बना है, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, अगर आपको ऊपर स्लोप दिख रहा है तो इट मींस इट्स अ पॉइंट ऑफ एग्जिट, राइट। तो ये जनरली डिसिप्लिन ट्रेडर्स के लिए है जो टेक्निकल चार्ट्स को पूरा फॉलो करते हैं, एंट्री और एग्जिट। हियर आप देखिए यहाँ पे पहले प्राइस ने 10 को ब्रेक किया, देन 20 को जैसे ही ब्रेक किया, देखिए कितना बड़ा फॉल यहाँ पे देखने को मिला। तो अगेन एक फॉल आया,
फिर अगेन एक बड़ा फॉल आया, तो ऑलमोस्ट यू कैन से दैट करीबन 400-500 पॉइंट का गिरावट इसमें देखने को मिली। अब प्राइस ऊपर चल रहे हैं, नाउ इट इज शोइंग द अप ट्रेंड। तो आपको आगे भी मोमेंट ऐसा अगर आप देख रहे हैं कि आपको लगता है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये मोमेंटम पॉजिटिव हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये आगे भी ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये एक टेक्निकल टूल है जिसको आप यूज कर सकते हैं। हम आगे और टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा स्काई सॉफ्टवेयर है जिसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दिस इज यहाँ पे भी इसका सर्च ऑप्शन है। यहाँ पर आप कॉपर लगाना चाहें आप कॉपर भी लगा सकते हैं। कॉपर इज द मोस्ट ट्रेडेबल कमोडिटी। आप यहाँ पे जिंक लगाना चाहें आप जिंक भी लगा सकते हैं। जिंक के भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो जो जो कमोडिटी हैं दीज आर ऑल अवेलेबल ऑन स्काई। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। यहीं पे हमारा बाय और सेल का सिग्नल है, आप यहाँ पे बाय और सेल इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर बाय का भी ऑप्शन है, सेल का भी ऑप्शन है। ये लाइव मार्केट चल रहा है, लाइव मार्केट में आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि लाइव मार्केट में किस तरीके से यूज करते हैं। अभी हम देख रहे थे गोल्ड का प्राइस 73,330 के आसपास था, 73,330। अभी ये 10-15 मिनट में करीबन 70 रुपीज इंक्रीज हो गया, राइट। तो इट मीन्स की प्राइस के अंदर जो मोमेंटम है वो आया है, राइट, जैसा हम टेक्निकल चार्ट्स के थ्रू देख रहे थे। तो यहाँ पर आप दोनों तरीके से अपने स्काई को यूज कर सकते हैं। और ये कुछ टेक्निकल स्टडी जो मैंने आपको बताई है, जो आप टेक्निकल टूल्स के बारे में बताया, आप उनको यूज कीजिए। आप इसको मोबाइल में भी डाल सकते हैं और मोबाइल के अंदर आप जब डाउनलोड करेंगे ऐप तो लॉग इन करेंगे अपने कस्टमर यूजर नेम पासवर्ड से, तो आप ये पूरा फीचर आप देख पाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। ऑप्शन ट्रेडिंग आप चार्ट के थ्रू कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप क्रूड या नेचुरल, अब इवन गोल्ड सिल्वर के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। गोल्ड में अगर आपको ट्रेड करना है 75,000 जब आप लिखेंगे तो यू विल गेट ऑल द कॉल एंड पुट ऑफ गोल्ड, राइट। सिल्वर अगर आप कॉल एंड पुट करते हैं, सिल्वर का आपने लिखा 95,000 की, अगर आप कॉल के बारे में देखना तो यू कैन इजीली सर्च 95,000 कॉल। तो 95,000 का आपको कॉल का जो चार्ट है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे आप इजीली ट्रेड डाल सकते हैं। तो कॉल पुट के भी सब चार्ट्स अवेलेबल हैं। यू कैन डू एनी टाइप ऑफ ट्रेडिंग, एनी टाइप ऑफ यूजिंग दिस। तो दैट इज ऑल अबाउट द द स्काई सॉफ्टवेयर। हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि किस तरीके से और एडवांस फीचर को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रॉम माय साइड। कोई आपका क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। See, you for trading you have to log in HDFC Sky platform। HDFC सिक्योरिटी वाले में अभी फीचर नहीं है, बट इसको आप इक्विटी में यूज कर सकते हैं। इसको सिक्योरिटी में, कमोडिटी भी हमारा सिक्योरिटी में लाइव नहीं है मोबाइल ऐप पे, बट हाँ स्काई के थ्रू आप इसको इजीली आप यूज कर सकते हैं, राइट। एनी क्वेरी, किसी का कोई क्वेश्चन? इन माय मोबाइल टेक्निकल चार्ट्स नॉट सीन। you can just click on that screen and जब आप उसको ऐड करेंगे you will see the technical chart। आप ऐप ऑन कीजिए, जब किसी स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो सी स्टॉक डिटेल, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक चार्ट ओपन होगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका बड़ा चार्ट ओपन हो जाएगा, उसको आपको
जो है आपको वर्टिकली आपको हॉरिजॉन्टली करना पड़ेगा, जिससे आपका चार्ट ओपन हो जाएगा, राइट। चार्ट उसमें अवेलेबल है। सी स्टॉक डिटेल आपको करना पड़ेगा, जब आप किसी भी स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट ओपन हो जाएगा। ये वेबिनार जो है आपका YouTube पे भी लाइव है, तो आप YouTube पे के अगर आपने मिस कर रहे हो कुछ चीज तो आप स्टार्टिंग से YouTube पर भी आप देख सकते हो। और आप HDFC स्काई में अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं तो आप HDFC स्काई का ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और उसमें जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको यूजर नेम पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो वो बनाने के बाद यू कैन इजिली यूज द टेक्निकल आर स्काई ऐप। प्लीज आस्क योर क्वेरी, एनी क्वेरी, कोई आपका क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ऐसा वेबिनार हम एवरी मंडे करते हैं 4 से 5। तो नेक्स्ट वेबिनार हम करेंगे कुछ एडवांस में कि और एडवांस क्या टूल हम यूज कर सकते हैं, दैट विल गिव यू अ मोर ऑन हाउ टू यूज कमोडिटीज। तो ये कमोडिटीज हैं जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल आप ट्रेड कर सकते हैं। सारे कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं। ऑप्शंस के अंदर गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। वॉलिडिटी बिल्कुल है, वॉल्यूम मार्केट के अंदर है, एंड यू कैन यूज एंट्री एंड एग्जिट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मार्केट टाइमिंग सुबह 9 से लेकर 11:30 बजे तक है। तो अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं देन आफ्टर 3:30 और आफ्टर 5 o'clock यू कैन डू ट्रेड। और जिस तरीके से हम जियो पॉलिटिकल टेंशन देख रहे हैं, जिस तरीके से हम पॉलिटिकल इम्बैलेंस देख रहे हैं यूएस मार्केट में, जिस तरीके से हम मॉनसून देख रहे हैं इंडिया में, जिस तरीके से हम इक्विटी मार्केट में फ्लो देख रहे हैं, ईटीएफ की बाइंग देख रहे हैं, तो ये सब जो है जो फैक्टर्स हैं ये अभी मार्केट में आते हुए दिख रहे हैं, तो उससे वॉलिडिटी मार्केट में बढ़ सकती है। तो कमोडिटी को अगर आप नहीं ट्रैक कर रहे हैं तो आप देखना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज दिस विल ऑल्सो गिव यू पॉइंट फॉर योर इक्विटी पोर्टफोलियो ऑल्सो। तो आपको इक्विटी पोर्टफोलियो में आपको सपोर्ट भी करेगा। तो अगर आप कमोडिटी मार्केट में ट्रैक कर रहे हैं तो आप इजीली उसको कमोडिटी मार्केट को ट्रैक करें, इक्विटी मार्केट को भी आप इजीली ट्रैक कर पाएंगे। यस, पुट एंड कॉल राइटिंग अवेलेबल है। अगर आप राइट करना चाहते हैं यू कैन राइट कॉल एंड पुट्स। ऑप्शन राइटिंग अवेलेबल है, आप ऑप्शन राइट कर सकते हैं। ब्रोकरेज जो है 20 रुपीज पर ऑर्डर है। 20 रुपीज पर ऑर्डर के थ्रू आप ट्रेड डाल सकते हैं, एन नंबर ऑफ ट्रेड यू कैन डू। कॉल बाइंग, पुट बाइंग, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, यू कैन डू एनी काइंड ऑफ थिंग। तब ये एक चीज ध्यान रखना है कि राइटिंग के टाइम पे जो मार्जिन लगता है दैट इज ऑल द फ्यूचर्स मार्जिन, and buy करते टाइम that is only the premiums, right? So I think you have a knowledge. We will do webinar on option trading as well for commodities. So आप call write भी कर सकते हैं, put write भी कर सकते हैं, आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। so सभी ऑप्शंस अवेलेबल है। ब्रोकरेज इज 20 रुपीज पर ऑर्डर। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ब्रांड बहुत बड़ा है, ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐप बहुत अच्छा है, शानदार ऐप है जिसको आप डाउनलोड करके आप ट्रेड डाल सकते हैं। ऐप में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे आप एक्सप्लोर करेंगे आपको बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। फंडामेंटल अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे, ट्रेडिंग टेक्निकल चार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है आप, तो आप अभी प्ले स्टोर से स्काई डाउनलोड करें। HDFC स्काई लिखेंगे तो वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इट विल टेक मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेंगे। आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन जो भी आप डालना चाहें वहां पे लगा के, जो जो डॉक्यूमेंटेशन है एज पर द कंप्लायंस आप डाल के उसको कर सकते हैं। तो आपको वहां पे ट्रेड देखने को मिलेगा। और हमने यहाँ पे जो भी डिस्कस किया है ये पूरा नॉलेज के लिए है। आप जो जो हमने आपको बताई आप उसको एक्सप्लोर करें। एक बार ट्रेडिंग करने से पहले आप एक बार पेपर ट्रेड जरूर करके देखें, एक बार उसको देखें, इसको एक्सप्लोर करें,
आपको बहुत सारी चीजें और देखने को मिलेंगी, पेपर ट्रेडिंग करके देखें जब तक आपको कंफर्टेबल ना हो। इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवेलेबल है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड मिनी सिल्वर के अंदर, तो आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट को जरूर ट्रेड करें। जब आप एम लिखेंगे तो आपके मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे सिल्वर मिनी, तो उसका भी प्राइस यहाँ पे जो है वो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं है कि बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स का चार्ट भी अवेलेबल है। तो गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी, जिंक मिनी, क्रूड ऑयल मिनी, नेचुरल गैस मिनी, सभी के कॉन्ट्रैक्ट मिनी के अवेलेबल है। तो अगर आप ट्रेड कमोडिटी में कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनसे स्टार्टअप कर सकते हैं। क्रूड ऑयल एम लिखेंगे तो आपका मिनी कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज अगस्त कॉन्ट्रैक्ट, क्रूड मिनी जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका जुलाई मंथ का कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट यहाँ पर आ जाएगा। आपको एक क्रूड ऑयल मिनी का जुलाई कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया, उसका भी चार्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप जब ट्रेड करें, suppose if option call of commodity expiring in the money, then how say silver will settle, cash or in bullion similar? ऑप्शन का जो भी आप ट्रेड लेंगे कमोडिटीज में, गोल्ड और सिल्वर में, इट विल कन्वर्ट इनटू द फ्यूचर। जब आपका ऑप्शन कोई भी एक्सपायर होगा इन द मनी, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूचर्स में। देन उसके बाद यू कैन एग्जिट, और इफ यू वांट टू टेक डिलीवरी देन यू कैन टेक डिलीवरी एज वेल। तो इक्विटी की तरह नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। यूर ऑल ऑप्शन की पोजीशंस आपकी इन द मनी है, तो वो डेट विल कन्वर्ट इनटू द फर्स्ट इन फ्यूचर, देन इट विल एक्सपायर as you want. If you want to take delivery, you can take delivery. If you want to close in future, you can close in future. तो ऑप्शंस दोनों अवेलेबल हैं। कैश में सेटलमेंट नहीं है, एज दिस इज अ डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। जो भी सेटलमेंट होगा फाइनली वो डिलीवरी में होगा। तो जो भी एक्सपायरी डेट है उससे पहले आप पोर्शन अगर काट लेते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इट विल सेटल इन द डिलीवरी। तो कोशिश कीजिए जब भी आप ट्रेड लें, देन यू शुड बी एग्जिट इन in the before the delivery. That is applicable for all the metals. But if we talk about crude and natural gas, these are all cash settle contract, but ये भी आपके फ्यूचर में कन्वर्ट होने के बाद आपके सेटल होंगे। तो अगर आपने ऑप्शंस में ट्रेडिंग लिया है क्रूड नेचुरल गैस में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कन्वर्ट इनटू द फ्यूचर्स, देन इट विल सेटल इन द कैश। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप मेटल्स में ट्रेड कर रहे हैं तो दैट ऑल आर विल बी सेटल्ड इन cash delivery segment, or in crude and natural gas will settle in cash settle. Brokerage is only 20 rupees per order. अगर आप एक ऑर्डर डाल रहे हैं उसमें चाहे आपने बेशक 10 लॉट डाले हैं तो आपके 20 रुपीज लगेंगे। तो 20 रुपीज पर ऑर्डर का ब्रोकरेज है। दैट इज हमारे एसडीएफसी का जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें सब चीजें मेंशन है, आपके सारे एक्सपेंसेस जो भी चार्जेस हैं तो वो उसमें मेंशन है, जिसमें ब्रोकरेज 20 रुपीज है। स्काई ऐप कैन यूज जिसका अकाउंट एचडीएफसी सिक्योरिटीज में है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू क्लोज द सिक्योरिटी अकाउंट एंड ओपन द स्काई अकाउंट। तो ये ऑप्शन है क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ एचडीएफसी। सो एचडीएफसी में आपका एक ही अकाउंट हो सकता है। अगर आप सिक्योरिटी में रखना चाहें सिक्योरिटी में रख सकते हैं, अगर आप स्काई में रखना चाहें दे कैन यू क्लोज विद द सिक्योरिटी एंड यूज द स्काई, राइट। तो अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो आप स्काई को आप यूज कर सकते हैं। इसमें 20 रुपीज पर ऑर्डर जो हमारी ब्रोकरेज है वो लगती है। तो 20 रुपीज पर ऑर्डर का है, इसको आप देख सकते हैं, राइट। इसका अगर आप सिक्योरिटी के थ्रू भी ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारा कॉल एंड ट्रेड डेस्क है, जहां पर आप ट्रेड डाल सकते हैं कमोडिटी के अंदर। क्योंकि हमारा अभी ये ऐप बन रहा है तो हो सकता है कि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में आपको ये सिक्योरिटी पे भी आपको दिखाई दे, तो उसमें सब चीजें आपको मिलेंगी। अभी हमारा सिक्योरिटी का भी ऐप अभी नया लॉन्च हुआ है। तो हमारा जो डेली डेस्क नंबर है कमोडिटी में ट्रेड करने के लिए, यू कैन राइट 02249360777। तो ये हमारा अकाउंट नंबर है, सॉरी फोन नंबर है, जहां पर आप कॉल करके कॉल एंड ट्रेड के थ्रू आप ट्रेड डाल सकते हैं कमोडिटीज में। अगर आप ऑनलाइन ट्रेड करना नहीं चाहते, अगर आप फोन के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमारे डीलिंग डेस्क नंबर है जहां पर आप कॉल करके भी ट्रेड डाल सकते हैं। तो हमारे पास दोनों फैसिलिटी है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो आप दोनों के अंदर आप ट्रेड डाल सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन।
सो थैंक यू, दिस इज फ्रॉम आवर साइड। आई होप कि आपको HDFC स्काई के अंदर कमोडिटी कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में एटलीस्ट कुछ पता लगा होगा, आपकी नॉलेज में कुछ हमने ऐड ऑन किया होगा। और आप कमोडिटी को एक्सप्लोर कीजिए, कमोडिटी को देखिए एज पर द वॉलिडिटी, बहुत ज्यादा वॉलिडिटी, अच्छी खासी वॉलिडिटी है, मोमेंटम अच्छा खासा है इसमें। आप इसको देखिए किस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। हमारी रिकमेंडेशंस आती हैं रेगुलर, हम ट्रेडिंग कॉल्स भी भेजते हैं, रिकमेंडेशंस भी आती है जिसको आप देख सकते हैं। हमारी रिसर्च का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 75-80% के आसपास है, जिसको आप यूज करके कमोडिटी में ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट मंडे को विद नए टॉपिक के साथ आएंगे, स्टे ट्यून। आपको वेबिनार के बारे में डिटेल मिल जाएंगी, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो कि आपको आपकी नॉलेज में एनहांसमेंट करेगा। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।